Good morning, student. Now we start the carbene reaction. So what is the carbene? Carbene is the electron deficient neutral carbon containing intermediates. Okay, and it's formed like that, X, C and Y, and having the vacant orbital, having the orbitals like 1 and 1 electrons. And why we say that it is the electron deficient, as well as why we say that it is the neutral. So first of all, checking it out. So first of all, here we can see there is the electrons 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6. They are present only 6 electron, but we know any compound which have the 8 electron to occupy its octet complete. इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. सेकेंड, न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज कार्बन 14 ग्रुप का मेंबर है और 14 ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. आउटर मोस्ट शेल में तो कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होना चाहिए, है भी, इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड. तो जो कार्बन है ये 2 स्टेट में रह भी सकता है, 2 स्टेट में रहता है. तो X, C एंड Y एंड 2 लोन पेयर. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आउटर में और 1 इलेक्ट्रॉन दोनों वैकेंट में. यदि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है 1 1, तो इसे हम ट्रिपलेट कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रिपलेट. और यदि इस फॉर्म में है कि 1 पूरा वैकेंट है और एक क्या है? कंप्लीट है, तो ऐसे में हम किसे कहते हैं? सिंगलेट. क्या कहते हो? सिंगलेट रिएक्शन कहते हो, सिंगलेट कार्बन कहते हो. अब जो ट्रिपलेट है इसमें ऑक्यूपाई करें, जो ट्रिपलेट है बाई रेडिकल भी कहा जा सकता है, बिकॉज में कितने रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 है, इसलिए इसको बाई रेडिकल कहते हैं. ओके, बट जो सिंगलेट है लोन पेयर ले सकता है बिकॉज वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इसको हम लिविस एसिड भी कहते हैं. और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये अटैक करा सकता है. इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग होगा ये, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा अटैक कर सकता है. अब इस पे ज़रा डिस्टिंग्विश करें, मतलब डिस्टिंग आप देखोगे दोनों में क्या डिफरेंस है. सो इसमें देखा जाए 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है. इसमें देखा जाए तो 2 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 वैकेंट ऑर्बिटल है एंड 1 कंप्लीट ऑर्बिटल्स है. ठीक है. अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक भी शो करेगा. ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. और ये अनपेयर्ड नहीं है इसलिए डायामैग्नेट होगा, डायामैग्नेटिक शो कर सकता है. इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो दिखा जाए तो 2 समीशन ऑफ स्पिन प्लस 1, हम इसका फाइंड करें तो दैट इज इक्वल टू here 2 in the mode of if the spin we can see there only 1 unpaired electron present in the orbital. So this is the, so that is in behind that it is the plus of, as well as second orbital it is the plus half. So plus half and plus half which is equal to 1 and plus 1, the 2 ones are 1 plus 1 which is equal to 3. So its spin multiplicity is 3. So that's the reason behind that we have to call it as it is a triplet. And here we can for the singlet spin multiplicity is equal to 2 mod of summation of spin plus 1. When we see that there is in only one orbital they contain the two electrons, and its spin multiplicity is difference, and its spin multiplicity is plus half as well as minus half. So in single orbitals they are present of plus 1, plus half as well as minus half. So that's the reason behind that it is going to 0. So 2 plus half as well as minus half and plus 1. So the plus half and minus 1 is equal to 0 into 0, that is equal to 0 plus 1 equal to 1. So that's the reason behind that we have to call it as it is a singlet carbene. Okay, and now we have to see how we can find the formation of the carbene. हम कार्बन कैसे बना सकते हैं वो हम यहाँ पे रिएक्शन देखने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन पे रिएक्शन कराओ. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन when we taken the CSCl3, you know what is the CSCl3? In presence of KOS the formation of carbene lone pair and singlet carbene there are, and only singlet carbene is formed here. So first H2O as well as KCl will form. So how it is forming, what is the mechanism behind that, we will discuss one by one. So देखा जाए CSCl3 जो है
इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा टेट्राहेड्रल में, हाइड्रोजन है Cl Cl Cl, इन प्रेजेंस ऑफ OH, OH क्या करता है हाइड्रोजन को लेके यहाँ से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, और जिसके कारण कार्बन पे क्या आएगा, लोन पेयर आ जाएगा और 3 Cl प्रेजेंट हो जाएंगे। अब ये कार्बन जो है अभी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया क्योंकि लोन पेयर आ चुका है, इसीलिए यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, लेविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाता है। और जैसे वो लेविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे Cl कार्बन Cl और यहाँ पे लोन पेयर तो था और यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल छोड़ के चला जाता है। अब लेकिन देखा जाए तो यदि वेकेंट ऑर्बिटल आया तो क्या ये कार्बन जो सिंगलेट बना है ये स्टेबल है इस समय? यस सर, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज ये जो क्लोरीन है इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 यहाँ पे हो गए, 3 4 5 6 7 8, ये लोन पेयर से दे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका RS बना देते हैं तो Cl C लोन पेयर आया तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड Cl। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे लोन पेयर था इसका, देखो 4 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कार्बन का ऑक्टेट हुआ है कंप्लीट। अब ये क्या हुआ, स्टेबल फॉर्म में रह जाएगा, तो इसीलिए क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मेशन हम करा सकते हैं हम CCl4 की फॉर्म में करा सकते हैं। तो कुछ इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी है, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप करके दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मेशन करा सकता हूँ मैं वो करा सकता हूँ CCl4 प्लस इसके साथ मैं रिएक्शन कराऊँ यदि RLi का एज वेल एज ROH देके कराऊँ तो रिएक्शन में फिर से कार्बन फॉर्म होता है। कैसे, कार्बन हुआ Cl Cl Cl, यहाँ पे भी Cl, इन प्रेजेंस ऑफ R नेगेटिव, ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिसके कारण कार्बन पे आता है लोन पेयर और 3 Cl फॉर्म हो जाते हैं। अब कार्बन अनस्टेबल हो गया, इसके लिए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में Cl निकल जाता है, जिसके कारण Cl और यहाँ पे आया यहाँ पे लोन पेयर था और ये वेकेंट ऑर्बिटल आ गया। अभी भी क्लोरीन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जिसके कारण ये सिंगलेट फॉर्म में ही यहाँ पे रहेगा। एक चीज़ ध्यान देना, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, यहाँ पे सबसे गुड लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन है, उसके बाद कौन है, ब्रोमीन, उसके बाद क्या है, क्लोरीन, उसके लास्ट में क्या है, फ्लोरीन है। तो यदि अब मैं क्वेश्चन आपको दूँ तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यदि यहाँ पे Br हुआ तो, यहाँ पे आयोडीन हुआ तो, और यहाँ पे फ्लोरीन हुआ तो सबसे पहले R किसे लेके जाएगा, R फ्लोरीन को लेके जाएगा, उसके बाद सॉरी सबसे पहले वो किसे लेके जाएगा, I को लेके जाएगा ना, क्योंकि FCl Br और I, तो सबसे पहले I को लेके जाएगा, फिर Br, फिर Cl, फिर फ्लोरीन को। सबसे पहले I कहाँ पर, ये निकल जाएगा R के साथ, उसके बाद अब ब्रोमीन की बारी है तो ब्रोमीन निकल के जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसे आप करके दिखाना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन करानी है आपको। ठीक है, तो लिखो जरा फटाफट क्वेश्चन आप करते जाइए। तो फर्स्ट रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ CH Cl2 Br, इन प्रेजेंस ऑफ आप RLi ले लिए एंड रिएक्शन कराइए। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका, मान लीजिए CHCl है और Br एज वेल I भी दिया है, इसे भी मैं RLi के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमको दिया है। नेक्स्ट हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। जो थर्ड टाइप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन का, वो हो सकता है हम डाइजोनियम से करा सकते हैं। किससे, डाइजोनियम क्या होता है, डाइजोनियम CH2N2 होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम हीटिंग करा के कराते हैं तो भी कार्बन फॉर्म होता है। एंड देखिए अभी डाइजोनियम कराता हूँ मैं CH2, इसका डायग्राम स्ट्रक्चर कैसा हो CH2N2 का, कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड करके नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड करके नाइट्रोजन रहता है। और इससे जैसे मैं हीट करा दूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसे मैं HV मतलब कि फोटॉन्स, या तो फिर हीट करा दूँ या तो हाई टेम्परेचर करूँ, कोई भी आपको दिया हो सकता है, तो फिर ये कार्बन फॉर्म करता है। तो अभी देखो कैसा होगा, ये मैंने डाइजोनियम बना दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन पे 4 5 6 7 8 लोन पेयर है, 4 11 2 लोन पेयर है, तो ये भी RS बनाओ, इस पर शिफ्ट, ये इस तरह शिफ्ट RS, तो हो जाएगा कार्बन पे आ जाएगा लोन पेयर विद द हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड करके नाइट्रोजन, बिकॉज ये इस पे है तो ट्रिपल और ये इस पे गया तो एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन। जैसे ही आप इसे हीट करते हो, हीट करने से नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाता है और कार्बन पर एक वेकेंट ऑर्बिटल बना देगा। तो जैसा देखा जाए कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन थे, ओके, यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है और यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल आ गया। अब बताओ क्या ये सिंगल फॉर्म जो बना है स्टेबल है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर है, देगा कहाँ से, सेट। तो ये 2 टाइप की रिएक्शन दे सकते हैं कि यदि कंपाउंड में पोलर प्रोटिक मतलब कि वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन इसे लोन पेयर दे देगा और इसके कारण कार्बन जो सिंगलेट फॉर्म में है वो स्टेबल रहेगा, मतलब कि फिर भी ऐसे ही फॉर्म होता है ये,
मतलब फिर ये ऐसे ही फॉर्म रहेगा, क्योंकि इसे पोलर प्रोडक्ट मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सिंगलेट के फॉर्म में एग्जिट करेगा। और यदि ऐसा नहीं है, नॉन पोलर आ जाए, नॉन पोलर मतलब कि DMT आ जाए या तो कोई गैसेस मॉलिक्यूल आपको दे दे, इनर्ट गैस दे दे, तो यदि ऐसे लिखा होगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मिल पाएगा इसे, तो ये जो सिंगलेट है वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। HCS इस पे था लोन पेयर, और यहाँ पे जो पेयर है क्या होता है, हुंसुल के अकॉर्डिंग टू हुंसुल ये इलेक्ट्रॉन शेड हो जाते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए शेड हो जाते हैं। ये हुंसुल ने क्या कहा था कि सेम एनर्जी वाले यदि ऑर्बिटल्स हैं तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सेम स्पिन वाले रहना चाहिए, और वो अपनी जगह को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं, तो वो ट्रिपलेट फॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेशन इसका हुआ। हम लास्ट रिएक्शन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, दैट इज किटिन से कराएंगे। ठीक है, किटिन से कराएंगे। तो 4 क्या होता है, हम किटिन से, किटिन क्या है, किटिन्स भी कीटोन्स की मतलब छोटी बहन ही है, तो ये है CH2Cu। इसका रिएक्शन जब हम लोग हाई हीटिंग कराते हैं या तो हीट करते हैं या तो फिर इसे हम हाई टेम्परेचर देते हैं, H में मतलब फोटोन सा, हाई टेम्परेचर देते हैं तो भी कार्बन हमारा फॉर्म होता है। कैसे, तो इसका पहले बनाओ डायग्राम, CH है, H है, डबल बॉन्ड करके कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे इसका RS बनाओ, कितने लोन पेयर है इस पे दाओ, 4 हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसका RS बन जाएगा। कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसे हीट करोगे, हीट करने से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन पे पास हो जाएंगे और यहाँ CO निकल जाता है और इस पर वेकेंट ऑर्बिटल आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वेकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा तो कार्बन आपको ऐसे दिखाई देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन है और एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और प्लस CO विच इज व्हाट इज दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी डेंजरस गैस, मतलब कि बहुत ही जहरीली गैस है। ओके, अब यदि फिर से वही बात है, पोलर प्रोडक्ट दोगे क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा, पोलर मतलब H2O आप इसे दोगे तो फिर क्या रहेगा, सिंगलेट फॉर्म में ऑक्यूपाई रहेगा, और नहीं तो DMT दे रहे हो या तो कोई गैसेस दे रहे हो, इनर्ट गैस दे रहे हो, तो फिर ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसे सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम इस पर बेस्ट रिएक्शन करेंगे, जो इस पर बेस्ट पे रिएक्शन आते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन कर ले इस पर, इसके बेस पर पे हम देखते हैं कि, चलो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। जो कार्बीन है, कार्बीन रिएक्शन आपको देते हैं एडिशन ऑफ अल्कीन, इससे हम लोग एडिशन ऑफ अल्कीन करा सकते हैं, अल्कीन का रिएक्शन करा सकते हैं। सेकेंड राइमर टाइमर करा सकते हैं, राइमर टाइमन का भी रिएक्शन करा सकते हैं। एंड थर्ड जो है इसे हम लोग कार्बाइल अमाइन का भी टेस्ट कराएंगे, कार्बाइल अमीन, ये तो प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी कहते हैं इसे, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, एंड जिससे मतलब प्राइमरी अमाइन ही रिएक्शन देता है ये। एंड 4 आपका आता है आर्नस्टर रिएक्शन, आर्नस्टर रिएक्शन। एंड 5 जो रिएक्शन आपका आता है वो है आपका होमोलोगेशन, एंड 6 जो रिएक्शन आपके है वो है सिमोन स्मिथ रिएक्शन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपकी ये है, ये और ये 2 और ये आपका जो है सबसे ज़्यादा मेनली इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब आर्न रिएक्शन एंड ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके नीट एज ए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।